لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. ہم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. نہ میں کسی انسان، نہ کسی ادارے، کسی کے سامنے میں نہ زندگی میں جھکا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی جھکنے نہیں دوں گا. اچھا اب شکریہ. اچھا سنیں اب میں نے آج آپ سب کو یہاں اس لیے دعوت دی کہ جس جذبے اور جنون سے، جس طرح آپ نے جیل بھرو تحریک میں شرکت کی، میری 26 سال کی اس سیاسی جدوجہد میں جو میں نے آپ کا جذبہ، آپ کا جنون اور آپ کا ایمان جو میں نے وہ دیکھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے سامنے ایک ہجوم کو قوم بنتے دیکھ رہا ہوں. سنیں تھوڑا میں ایک منٹ میں نے آپ کو یہاں میری حوصلہ افزائی کے لیے نہیں بلایا، میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. سنیں ذرا میری بات سنیں. ایک منٹ سنیں ذرا. میں نے آپ سے بڑی اہم بات کرنی ہے کہ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ جدھر پاکستان کو یہ چور اور ڈاکو جدھر یہ لے گئے ہیں، اس کا صرف ایک قوم مقابلہ کر سکتی ہے. اس وقت کا ایک ہجوم نہیں مقابلہ کر سکتا. جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے، جو رکاوٹ آئے، ہم دور کر دیں گے، اس قوم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو قوم ہے یہ ایک خاص نعرے پہ بنی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور ساری قوم، سارے صوبوں کو پیغام کیا تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا. اور یہ نعرہ جو ہے، یہ اللہ سے جو وعدہ ہے، یہ آزادی کا نعرہ ہے. جب آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کی آزادی کا دعویٰ ہے. ایک قوم جو غلام ہوتی ہے وہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتی، صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنا کے ثابت کیا کہ ان لوگوں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کی امامت کی انہوں نے. 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئیں کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گئے تھے. ان کے دلوں میں چلا گیا تھا، وہ آزاد ہو گئے تھے. یہ ہے ہماری جنگ اس وقت، آزادی کی جنگ، حقیقی آزادی کی جنگ. اچھا یا رسول اللہ، سنیں آپ میری بات. یا علی سنیں، مجھے آپ کے جذبے اور جنون کا احساس ہے ماشاءاللہ. لیکن سنیں ذرا، سنیں. اچھا سنیں بس، سنیں بس. اچھا اب آج
آج جو پاکستان کا بدترین وقت ہے، معیشت ڈوب گئی ہے، تنخواہ دار اور غریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی میں پس گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر مسلط ہو کے اس کو تباہ کیا ہے، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ بس 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 سنو ذرا، اتنا آپ جیل کاٹ کے آئے ہیں، میں آپ سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ بجائے باتیں کرنے کے نعرے آپ کے ختم نہیں ہو رہے۔ سنیں بڑی بڑی غور سے بات، مجھے آپ کے جنون کا پوری طرح اور جذبے کا اندازہ ہے، لیکن بس میں نے سنا ہے مجھے ساری تمہاری جیل کی خبریں آتی رہی ہیں۔ جس طرح میں کرکٹ میچ کا سکور دیکھ رہا تھا، اسی طرح آپ کے جیل کے حالات دیکھ رہا تھا۔ اچھا اب سنیں ذرا میری بات، دیکھیں آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے؟ وہ کرائم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو۔ کوئی پاکستان کا، آپ اگر ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہوا؟ اب ذرا بڑی غور سے بات سنیں، میرے جذبہ اور جنون والے، میرے جو ٹائیگر، جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں، میری غور سے بات سنیں۔ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حکم ہے اللہ کا ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے، سچ پہ کھڑا ہونا ہے، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنی ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کا۔ آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے، جو ہم نیچے، کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے، تو اس کی ذرا وجہ سن لو۔ پرائم منسٹر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی، 8 ارب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی، جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائم منسٹر بنایا۔ انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصل آباد میں پوچھ لیں کہ اس سے بڑا بدماش فیصل آباد کا ہے ہی نہیں، کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا، اپنا خود کہتا ہے۔ ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیے ہیں اس نے۔ زمینوں پہ قبضے، قاتل، وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر۔ آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے۔ سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے، مخالفین کو قتل۔ مرتضی بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا۔ چور، قاتل، اربوں روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا، جنرل باجوہ نے بچایا اس کو۔ اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملک کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا، سزا یافتہ، اربوں روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں، جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا ہے، وہ ملک کو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ، اوپر فیصلہ کرنے والے، ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلنا؟ کون سا ملک دنیا میں، مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا ہو اور جدھر اس طرح کے چور بیٹھے ہو۔ اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی۔ جب انسان بھیڑ بکریاں بن جاتے ہیں، جب وہ رائے حق پہ نہیں کھڑے ہوتے، جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، تو اللہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے۔
उनकी कोई हैसियत नहीं होती। जिस कौम में जुल्म का मुकाबला करने की सकत नहीं होती, दिलेरी नहीं होती, वो कौम गुलाम बन जाती है। मैं बार बार इस्लाम के सबसे बड़ा जो सानिया हुआ था करबला का, मैं बार बार बताता हूं कि कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े थे, उनको पता था। लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ की वजह से उन्होंने इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म होने दिया। ये जो खौफ का बुत है, ये इंसान को गुलाम बनाता है। इसकी पूजा करोगे, गुलाम भी होगे, जलील भी होगे। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। भिखारियों की तरह कर्जे मांग रहे, कोई नहीं दे रहा, क्योंकि चोर ऊपर बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं दे रहे पैसे? नंबर वन, उन सारी बाहर की दुनिया के लोगों को पता है कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े डाकू हैं, इनके पैसा बाहर पड़ा है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, तो जब दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आता था, तो मेरा जो फॉरेन ऑफिस है वो मुझे पूरी तफसील देता था। किधर पड़ा है, माजी में इसने क्या किया, इसकी रेपुटेशन क्या है, एक एक चीज मुझे पता होती थी जब वो मुझे मिलने आता था। तो क्या ख्याल है, जो आप ये आसिफ जरदारी या ये जो शहबाज शरीफ बाहर जाता है, एक एक चीज बाहर की दुनिया को पता होता है कि इनके कितने पैसे बाहर पड़े हैं। ये दो खानदान अगर आधा भी अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए, तो यहां आपको कोई IMF या किसी से कर्जे लेने की जरूरत ना पड़े। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और लोगों से भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान को डॉलर दो। अपने पैसे डॉलरों में बाहर रखे हुए हैं। 100 रुपया जब से ये आए हैं, 100 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। तो कौम तो 100 रुपए से ज्यादा गरीब हो गई है। कौम की तो खरीदार और कम हो गई है, और ये डॉलरों में पैसे रखने वाले, इनका तो 100 रुपये और ऊपर चला गया। इनका मकसद कभी पाकिस्तान नहीं था, नहीं तो इनका जीना मरना मुल्क में होता। ECL पे चले जाएं तो इनकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, खौफजदा हो जाते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते। मैं ये कहता हूं, मुझे डालें ECL पे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता बाहर। सुने जब एक मुल्क के ऊपर जराइम पेशा लोग बैठ जाएं और एक मुल्क का आर्मी चीफ साजिश करके उनको ऊपर बैठा दे और फिर कौम को डराए कि अगर आप कुछ करेंगे तो जेलों में डाल देंगे, आपके ऊपर केसेस कर देंगे, खौफ दिलवा के इन चोरों की गुलामी करवाए और कौम चुप करके ये गुलामी तस्लीम कर ले। वो मौलाना रूमी ने जो कहा था, उनसे पूछा कि कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी से पूछा कि इंसान तो हमें पता है कैसे मरता है, कौम कैसे मरती है। मौलाना रूमी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। ये हमारी मौत है, ये सुन लो पाकिस्तानियों, ये मौत है। ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं आपके सामने, इनके ऊपर जो केसेस हुए हैं, केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए। इनके केसेस, इनकी जब हुकूमतें थी 10 साल में, तब के केसेस बने हुए हैं। ये सागदार नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा था। नवाज शरीफ के 2 बेटे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागे थे। मैंने केसेस नहीं बनाए थे। मरियम जो पकड़ी गई पनामा के अंदर, वो तो इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिधर पता चला कि अरबों रुपए के
4 मेफेयर के लंदन के सबसे अमीर महंगे इलाके में इसके नाम पे निकले और इसके भाई ने टीवी पे जाके तस्लीम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम नवाज के फ्लैट है। आज तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया है, क्योंकि चोरी का पैसा था। वो फिर रही है जिस तरह के कोई मलका एलिजाबेथ फिर रही है पाकिस्तान में, हर जगह कभी एक तक। और ये जुल्म देखें, उसको पूरा तरह पुलिस का प्रोटोकॉल, पंजाब की हुकूमत टैक्स के पैसे के ऊपर उसकी मदद, उसके लिए ठहराना चलाना जलसे करना। और जो साबिक वजीर आजम, एक कातिलाना हमला हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जमान पार्क में खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था यहां से अरबों रुपए चोरी करके वो भगोड़ा लंदन में छिपा बैठा है। चेयरमैन पीटीआई खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर को 16 अरब रुपए केस में सजा होनी थी। कमर जावेद ने उन्हें बचाया और उज़्मे पर बिठा दिया। फैसलाबाद में किसी से पूछ लें, राना सलाउल्लाह से बड़ा बदमाश कोई नहीं। मुझे अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, अदालतों में मुझे चक्कर लगा रहे हैं। जब मैं भी तुम्हारी बात करवाता हूं, अभी करवाता हूं, सुने। वहां जाके अदालतों के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं, पता है कि जान को खतरा है। और फिर से ये 3 और इनके साथ 1-2 और भी मुलव्विस है, पता है कि वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है। और छोटे छोटे केसेस में कभी किसी अदालत में बुला लें, कभी किसी अदालत में। और इसको जो कि जमानत पे थी, उसके लिए पुलिस प्रोटोकॉल हो रहा है। मैं सिर्फ कौम को यह बताना चाहता हूं कि इस निजाम को अगर हम कबूल कर गए, जो ये कोशिश कर रहे हैं डरा के धमका के, जिस तरह हम भेड़ बकरियां के हमें कबूल करवा लें, कोई आपके और आपके बच्चों का इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए एक ही रास्ता है। हमारी कौम, मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि जो जेल भरो तहरीक, ये सिर्फ लोगों के खौफ दूर करने थे कि हमें कोई जेलों से फिक्र नहीं। और मुझे पता है वो बिल्कुल नौजवान ठीक कह रहा है कि जानवरों की तरह इन्होंने हमारे लोगों को रखा। इन्होंने जान के ये साबित करने शुरू के ये और डरेंगे, पीछे हट जाएंगे। जबकि मैं देख रहा था कि हर शहर में ज्यादा लोग निकलना शुरू हो गए जेलों के लिए। यानी जैसे जैसे तहरीक बढ़ रही थी और ज्यादा लोग जेलों के लिए तैयार हो गए। और मैं एक दिन मैं देख रहा था कि किस तरफ जा रहा है। मैंने कॉल देनी थी सारे पाकिस्तान को कि एक दिन सारा पाकिस्तान निकले और जेलों में जाए ताकि इनकी सारी खत्म कर दो। मैं चीफ जस्टिस को, मैं सुप्रीम, बस मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मैं अपने वकीलों के जरिए खत भी लिख रहा हूं कि अगर, जब पता है, खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि इमरान खान की जान खतरे में है, मैं कह रहा हूं मेरी जान खतरे में है। और मैं पहले 2 महीने पहले कह रहा था कि जान खतरे में, उसके बाद हमला हुआ मेरे पे। मैंने पहले पेशन गोई कर दी थी क्या करना है इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं, और मैं चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा वकील आज खत लिखें कि मजाहिया केसेस के ऊपर बुलाया जा रहा है। इलेक्शन के कमीशन के सामने मुजाहरा होता है, मैं घर बैठा हूं और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस।
तोशाखाना का केस, मैं तो कहता हूं आज कि जब भी तोशाखाना का केस मेरा सुना जाए, पब्लिक हियरिंग हो, टीवी के ऊपर सारी कौम को पता चले कि वो केस क्या है। कौम को पता चले कि क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क से, कि जिन्होंने डाका मारा तोशाखाना के ऊपर जरदारी और नवाज शरीफ ने, उनके केसेस खत्म कर दिए हैं। और जिसने, और इंशाल्लाह ओपन हियरिंग हो, सारी कौम के सामने पता चले तोशाखाना केस क्या है। मैं चैलेंज करता हूं कि सारों के केसेस देखें, और अगर किसी ने कोई भी गैर कानूनी चीज तोशाखाना में ने की, उसका नाम इमरान खान निकलेगा। और मैं चीफ जस्टिस को हम ये खत लिखेंगे मेरे वकीलों के जरिए कि जब पता है कि मेरी जान खतरे में, लाहौर हाई कोर्ट गया और इस्लामाबाद गया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और जबकि जिसने मुझे गोलियां मारी वो नवीद जो है, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर उससे अदालत में वो बात करता है। तो ये तो ऐसा है कि जिन्होंने तहफ्फुज देना है, खतरा उन्हीं से ही है जिसने, अब ये राना सनाउल्लाह जैसा गुंडा कभी ये किसी को तहफ्फुज दे सकता है क्या? ये शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ जिसके ऊपर रिपोर्ट है कि पुलिस मुकाबले में इसने कितने लोग मरवाए हैं, आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके कहा कि मुझे यह हुक्म करता था लोगों को मारने के लिए। मॉडल टाउन में इन दोनों ने सबके सामने टीवी के ऊपर नहते लोगों के ऊपर गोलियां चला के 14 लोगों को कत्ल किया और 60-70 लोगों को गोलियां लगी। इन लोगों ने तहफ्फुज देना है। और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। जिस तरह का इसने आजम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था। ये वो आदमी है, बच्चों को पकड़ के, सोशल मीडिया के बच्चों को जो इसे किया, जो शहबाज गिल से किया है, उल्टा लटका के उससे जो किया है, इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बेचारा चौकीदार, उसको उठा के ले गए, उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया। एक तो ये चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जमान पाक में खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था, मुर्तजा भुट्टो की फैमिली कहती है आसिफ जरदारी ने कत्ल करवाया है। ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे आसिफ अली जरदारी छिपा बैठा है। पाकिस्तान जितना नीचे आज गिरा है, कभी इतना नीचे नहीं गया। पाकिस्तान की मईशत डूब रही है और जो लोग इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं, उनके पैसे बाहर पड़े हैं। आज हमारा मुल्क दुनिया के सामने जलील हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जमान पाक में खिताब कर रही हैं और उनका कहना है कि इन चोरों को हमारे ऊपर लाकर मुसल्लत किया गया। इन पर केसेस हैं और उनको केसेस से रिलीफ देने के लिए इनको हम पर मुसल्लत किया गया। आसिफ जरदारी पीछे बैठकर सारा खेल खेल रहा है। दुनिया को पता है जो ऊपर बैठे हैं सबसे बड़े डाकू हैं। तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं, और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस हैं, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शहबाज गिल एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या ये आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया? इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलोचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को
बाजवा ने ऊपर बैठा दिया हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मैं जब शुरू में 11 महीने पहले कह रहा था, जब चोर ऊपर आए, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने तब कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। 8 लाख सबसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, पिछले चंद महीने में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। कौम मुल्क से मायूस हो गए हैं, उम्मीद खत्म हो गई है। और क्यों ना हो, किसी मुल्क के ऊपर इन मुजरिमों को बिठा दो। मैं चैलेंज करता हूं, इन मुजरिमों को कल बरतानिया के ऊपर बिठा दो, उसका दिवालिया निकाल देंगे। मैं आखिर में सुने, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जितना हम सब आपको देख रहे थे जब आप जेलों में थे, जो आपको पकड़ रहे थे, आपने मेरी सारी पार्टी का सर फख्र से ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।